Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Today, we'll be discussing next chapter from our geography section, which is natural vegetation and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और जंगल का जीवन. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India, being a vast country, you can imagine the types of bioforms available throughout the country. पूरे देश में, आपके घर में, घर के आसपास, मोहल्ले में या आपके शहर में, आप चारों तरफ जब देखते हो तो आपको अलग अलग तरह की वनस्पति पेड़ पौधे नजर आते हैं. Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. हमारा देश भारत 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में से एक है. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. भारत के अंदर तकरीबन 47,000 तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं और इसके कारण भारत संसार में 10वें नंबर पर और एशिया में चौथे नंबर पर आता है. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in world's total number of flowering plants. भारत के अंदर तकरीबन 15,000 प्रजाति के फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि संसार का तकरीबन 6% है. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. इतना ही नहीं, भारत के अंदर बहुत सारे non-flowering plants भी हैं जिनके अंदर फूल नहीं उगते हैं. इसके साथ साथ भारत में, इंडिया में तकरीबन 90,000 प्रजाति जानवरों की पाई जाती है. बहुत सारी प्रजातियां मछली की भी पाई जाती हैं. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits, orchards form parts of vegetation but not natural vegetation. भारत के अंदर आप बहुत सारे हमें प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन इनमें से काफी सारे पेड़ पौधों को इंसानों के द्वारा उगाया जाता है और उनमें इंसानी हस्तक्षेप पाया जाता है. ये प्राकृतिक नहीं है. वो वेजिटेशन या वो वनस्पति जो कि अपने आप प्रकृति में उगती है, जिसमें इंसान के द्वारा कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, उसे वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है और वही प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन होती है. The virgin vegetation, which are purely Indian, are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी वर्जिन वेजिटेशन पाई जाती हैं. कुछ तो भारत की खुद की ही उत्पत्ति हैं और जो पेड़ भारत के अंदर ही उसकी उत्पत्ति हुई है वो एंडेमिक या इंडिजिनस स्पीशीज कहलाती हैं, और जो कहीं दूसरे देश से आकर भारत के अंदर उगी हैं वो एक्सोटिक प्लांट्स कहलाते हैं. The term flora is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. पेड़ पौधे या फ्लोरा और जीव जंतु फौना, इनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं का कारण है बहुत सारे रिलीफ फीचर्स. पहला कारण है लैंड. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateau,
and plain areas or in dry and wet regions. The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया कि इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े थे। वहां पर हमने देखा था कि कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर प्लेटोज हैं और कहीं पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो इन अलग अलग तरह के जमीनों के अंदर एक जैसा मौसम या एक जैसा सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इसी कारण से अलग अलग रिलीफ फीचर्स वाले एरिया में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। Second factor affecting the diversity is soil. किस तरह की मिट्टी होती है। The soils also vary from space. Different types of soils provide bases for different types of vegetation. The sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes, while wet, marshy, deltaic soils support mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. जिस तरह की मिट्टी पाई जाएगी उसी तरह की वनस्पति वहां पर उगेगी। रेगिस्तान में कैक्टस उगेगा तो मार्शी एरियाज में जहां दलदल है वहां पर मैनग्रूव्स होंगे। पहाड़ों पर कॉनिकल पेड़ पाए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। किस तरह का मौसम होगा, उसमें अलग अलग क्या चीजें हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, किस तरह का तापमान है। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर्स along with humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills of peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical temperature and alpine vegetation. अलग अलग जगह के तापमान के कारण वहां पर पाए जाने वाली वनस्पति, वेजिटेशन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन पाया जाता है। आप यदि डेजर्ट के अंदर हमें कैक्टस मिलेगा तो वहां पर हमें ऊंट भी मिलेगा, और यदि हम पहाड़ी इलाके देखते हैं तो वहां पर जहां पर हमें कोनिकल हिल्स मिलती है तो वहीं पर लंबे बालों वाले याक भी पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज photoperiod or the sunlight. The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. धूप कितनी मिल रही है इसके ऊपर पेड़ पौधे की ग्रोथ डिपेंड करती है। जब अच्छी मात्रा में धूप मिलती है तो उस समय पेड़ों की लंबाई भी या पेड़ों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेक्स्ट फीचर इज प्रेसिपिटेशन या बारिश। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जिस मात्रा में पानी मिलेगा, बारिश होगी, उसी मात्रा में वहां पर पेड़ पौधे भी उगेंगे। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? Now this is very important questions. जंगल इंसान के लिए जरूरी क्यों है? क्यों है जरूरी? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. जंगल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो अपने आप ही दोबारा से वापस नवीन हो जाते हैं, नए हो सकते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। जंगलों की वजह से वहां का जो तापमान है, वो वहां का मौसम, कितना सॉइल इरोजन होगा, कितना वहां पर, कितनी मात्रा में वहां पर नदियां बहेंगी,
या किस दिशा में नदी बहेंगी, किस तरह की वहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, किस तरह का वहाँ पर जीवन यापन होगा, ये सारी चीज़ों को वो प्रभावित करते हैं। इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल। इनकी वजह से हवा पर भी कंट्रोल होता है और जिसके कारण बारिश की मात्रा पर भी कंट्रोल होता है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. बढ़ते हुए उद्योगों के कारण या जानवरों के द्वारा जंगल की जमीन पर चरने के कारण इन जंगलों की मात्रा पे बहुत परिवर्तन आया है, या इन जंगलों की जो साइज है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. हिमालय जैसे इलाकों में या फिर रेगिस्तानी इलाकों में जहां पर प्रकृति के साथ इंसान उतना बदलाव नहीं ला सकता है, बाकी के हिस्सों में इंसान के कारण या इंसानी छेड़छाड़ के कारण वनस्पति और जीव जंतुओं में की प्रजातियों में परिवर्तन आया है। Now the next is ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions. The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. Ecosystem मतलब इंसान, पेड़ पौधे और जीव जंतु जानवरों के बीच के अंदर, इन तीनों ही चीजों के अंदर तालमेल। यदि पेड़ ज्यादा होंगे और जानवर कम होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगा, उन पेड़ों का कंजम्पशन करने वाला कोई नहीं होगा, तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। और यदि पेड़ पौधे कम होंगे और जानवर ज्यादा होंगे तो खाने की कमी हो जाएगी, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और उससे भी प्रकृति पर प्रभाव या प्रकृति के क्वालिटी पर प्रभाव पड़ेगा। How do human beings influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings leads to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called a biome? The biomes are identified on the basis of plants. इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, वो इन पेड़ पौधों और जानवरों से अपना उपयोग से ज्यादा जब इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ जाता है। बायोम वो चीज है जिसको इंसान ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। एक इलाके के अंदर पेड़ पौधे और जानवरों की संख्या भारी मात्रा में, इस चीज को बायोम कहा जाता है और इंसान ने अपनी ग्रीड की वजह से इस पे बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किया है। That's all for today. We have discussed in this video what is biome, what is ecosystem, what are the factors that affect the type of vegetation and animal wildlife. I hope you have understood it. Very soon we'll meet with the next topics of the chapter. Until then, stay safe and healthy.